Ashish Govalkar, we have Ranjit Thakur, and we have Hemant. I'll tell you a little bit about them. They have worked in different platforms. They have given hit across different channels. But between them, the understanding of this form, especially on talent reality show, I think there is no three individual in this country who knows about this space better than them. So rather than me saying anything more, just to add a little bit about this trio, I will want to tell you कि अगर हिंदुस्तान में dancing की शक्ल किसी ने बदली है, तो that's this trio. Ladies and gentlemen, please give it up for them. Please, can we have you on stage, sir? Please. Ashish works with me on Sony. He's the senior creative director. Ranjit and Hemant run a very successful production. It actually makes my life little more difficult because with the expectation build हो गया तो deliver करना पड़ेगा. But as he said that we've always tried to make shows that are entertaining, that are honest. Sorry. पे काफ़ी I mean they're pioneers in bringing talent shows, चाहे वो idol हो, चाहे वो entertainment के लिए कुछ भी करेगा हो या comedy circus हो, ये सारे talent based shows थे. और जैसा इन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे वापस रिवाइव हों और किसी न किसी रूप में वापस आप तक पहुँचे. जहाँ तक रही बात सुपर डांसर की, तो सुपर डांसर जो शो है उसके बारे में जैसे टैलेंट अभी बच्चे आएंगे वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे. आई होप आप आपको अच्छा लगेगा. कुछ प्रोमोज में भी आपने थोड़ी बहुत झलकियाँ देखी हैं. और साथ में हमारे 3 सीजन जजेस हैं जिन्होंने डांस को एक मतलब शिल्पा जी और गीता जी ने डांस को नई परिभाषा दी है. वी वर्कड विद ऑल द 3 ऑफ देम एंड दे विल कम एंड टॉक अबाउट इट. ऑन सुपर डांसर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि इसकी परिकल्पना जो कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था, पर्सनैलिटी होती है जो डांस को लेकर उनकी सुपर पावर है. सो हम चाहते हैं कि उसको कैसे बढ़ाएं, उभारें, सो दैट वो उसी चीज़ में स्पेशलाइज, जैसे बोलते हैं ना कि आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो उस सुपर स्पेशलाइजेशन को कैसे बच्चे अचीव कर सकते हैं. और उस एज में क्या होता है ना, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अनकरप्टेड जिसको बोलते हैं वैसा रहता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं. और वो करने के लिए पहली बार ऑन अ डांस शो वी विल हैव डेडिकेटेड कोरियोग्राफर्स जो इन द फॉर्म ऑफ देयर टीचर्स विल उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनकी जो कमियां और जो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनको बराबर तरह से ढाल के और एक परिपक्व डांसर जिसको हम कह रहे हैं डांस का कल बन सके, इस तरह के लेवल तक लेके आएंगे. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज मेंटेन दैट डांस शोज या ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर अ मीडियम. We just provide a medium. We are not there. It's like when you graduate, nobody guarantees you of job. So all these reality shows, they are not a guarantee for success. But what they can do is they can give you opportunity for you to shine. And then of course it's all up to what you eventually will become. So that's about it. I think I'll give it to Ranjit. Thank you. Thank you, Danish sir, Ashish. And thank you so much for our collaboration with Sony and your faith in us. And hopefully we can deliver a very, very good show, which we always been trying and striving very hard to do. And thank you so much for this, sir. Thanks a lot. Hemant. Hi, saying the same thing. Thank you, Danish sir, for such a high-pressure introduction. And obviously we will try our best to live up to it. We've managed to find best of the talent which we feel should be entertaining. Choreographers, in terms of the 12 choreographers that we are going to present, they are different, they're unique. They would be presenting some unique acts. I'm sure the rest is something that you will decide, audiences will decide. And we hope that, as always, you like the format that we present. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much, everybody. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Thank you so much, sir. Thank you. जो ये 4 महारथी हैं, इन्होंने कहा कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है आपको कई सारे फील्ड्स में कई सारे रियलिटी शोज, कई सारे जो टैलेंट हंट शोज है वो देता आया. लेट मी रिमाइंड यू, आई थिंक हम सब लोग शायद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला द मैसिव डांस रियलिटी शो था, वो था बूगी वूगी. हम सब जानते थे. आई थिंक हम सुपर डांसर के साथ सिर्फ लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि सोनी टेलीविजन आज भी वही प्लेटफॉर्म है जो आपको विच गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. चलिए, मूविंग अहेड. अब बारी आती है उन बच्चों की जिनमें हम डांस का कल ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों की, उस फ्यूचर की जिसे हम सुपर डांसर कहेंगे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं हमारे
कुछ चंद ऐसे चुनिंदा सुपर डांसर्स जो बिलीव मी आपको हैरान कर देंगे, चकाचौंध कर देंगे. छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट आई थिंक यू शुड जस्ट look out for it. Just देखो and then judge it for yourself, ladies and gentlemen. Give it up for our first super dancer. She is yes. So ladies and gentlemen, our first super dancer coming up on stage is Tanya. Give it up for Tanya, everybody.
सर बर्फी नहीं तो जग्गा जासूस. All right, ladies and gentlemen, one more, हाँ, please. Once more. All right, so that's Anurag Basu, ladies and gentlemen. Give it up for Anurag sir. एक बार, come on, please. सर ये इनसे करवाना पड़ता है सर. क्या करूं मैं? मीडिया वाले ना. नमस्कार सर, बड़े अच्छे लोग हैं आप. तो ओके, मूविंग अहेड टू द ब्यूटी ऑफ द शो. वेल, हाँ, साफ करना पड़ेगा सर. मैं एक मिनट थोड़ा सा. ओके, एक काम करते हैं. यस, हमारी द ब्यूटिफुल, द एवरग्रीन, द गॉर्जियस, द वाइवेशियस, इनके बारे में कितनी सारी चीज़ें हम का एक बहुत सारी चीज़ें कम है. फॉरगेट इट. हम ज़्यादा ना कहते हुए उनका स्वागत करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर नन अदर देन ऋत्विक धनजानी. Sorry, it was bad. But ladies and gentlemen, give it up for Shilpa Shetty! गया मैम गया. नाइस सोनी टीवी, बहुत खर्चा किया तुम लोगों ने. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे तीनों जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये है जो आपको देंगे हमारा डांस का कल. सो हम आगे बढ़े और इनको सवाल पूछने को कहें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिल्पा मैम, यू हैव टू टेल अस कि सुपर डांसर, you're one of the very important 3 pillars of the show. So what are you expecting out of the show? इतने सारे डांस रियलिटी शोज, इतने सारे शोज के बाद, now you know super dancer. So what is it that you want out of the super dancer that's going to be? मैं क्या चाहती हूँ? Yes. डांस का कल. As simple as that. I know. No, I mean on a serious note, very good evening to members of the press. और हाँ, ये शो मैंने बार बार दोहराया है कि अलग है मेरे लिए. अलग इसलिए है क्योंकि अब तक जो भी मैंने शोज़ जज किए हैं, जजिंग के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो परफॉर्म करते हैं वो लोग भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. इस शो में ये खासियत है कि जो परफॉर्मर्स हैं हमारे, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जज करना और भी मुश्किल हो जाता है. तो इट्स सो अमेजिंग. आई रियली विश दैट वी ऑल थॉट विद आवर हार्ट्स एंड you actually learn so much goodness from these beautiful children who are only full of heart and love. And जो वो कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी उनके दिल से आ रहा है. और मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ उनको जज करने के लिए. ये मैं बहुत बारी सोचती हूँ. और आई एम श्योर दैट यू नो बीइंग जजेस, and I would take the carte blanche even to say that about Anurag and Geeta. And Geeta and Anurag, I think, have had बहुत सारा experience in terms of judging children. लेकिन I'm sure उनके लिए भी बहुत मुश्किल है बच्चों को जज करना. तो मेरे लिए एक learning curve है. बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे इन बच्चों से. कितना झूठ बोलेंगे यार. अरे यार, सच्ची बोल रही हूँ यार. ये हमारा काम आसान हो गई है. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं बोल रही हूँ कि हम सबके लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन ये लोग मुझे डांटते रहते कि मैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट पे मैं रोना शुरू कर देती हूँ. हाँ सी. नहीं, ये बात बिल्कुल सच है. हमने जितनी बार भी ऑडिशंस में देखा ना, इनको हर बच्चे में वो ना बोलने से पहले खुद रो देती है. ना कैसे बोलेंगी? इतना मुश्किल होता है, पता है, ना बोलना. इट्स सो हार्ड. तो एक्चुअली हमारे जो टॉप 12 या टॉप 15 होते हैं, वैसे हमारे टॉप 100 होने वाले हैं इस बार. हैं, होने वाले हैं. क्योंकि एक शो पे ना आप जीते थे जहाँ पे मैं जज थी, और मैंने बहुत रूट किया था तुम्हारे और आशा के लिए. कितनी अच्छी जज है ना ये. मैं मजाक नहीं कर रहा. सारे बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं इनसे. मैं पॉइंट्स वापस ले रही हूँ. But alright, अच्छा, गीता माँ, not गीता माँ, but गीता कपूर. So मैम, आप बताएं कि you have judged so many shows across platforms, और इतने सारे बच्चों को डांस करते हुए, बच्चों बड़ों सबको डांस करते हुए देखने के बाद, now super dancer. So what now?
अब इसके आगे डांस का कल क्या? मैंने भी सोचा था कि अब क्या, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतना टैलेंट है इंडिया में, एंड इट्स अमेजिंग कि आप जितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो ऐसा लगता है कम है, बिकॉज द मोर आई सी द मोर आई गेट. मुझे इस शो पे आके और टैलेंट दिखा है, एंड वाकई में डांस का कल दिखा है. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड नाउ. Wow, So, yeah. wow, fantastic. All right, दादा बोल. आप बताएं कि what आपने भी इसके पहले बच्चों का एक शो जज किया, मेरे साथ ही जज किया सर, मैं वहाँ पे भी एंकर था, बट वो एक अलग शो, ये एक अलग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर एक्टिंग, यहाँ पर डांसिंग. सो नाउ एज अ डांसर, सुपर डांसर, डांस का कल, डांस का फ्यूचर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो आपके हिसाब से डांस का फ्यूचर क्या है इन बच्चों में स्पेसिफिकली? यार आई एम द लास्ट पर्सन टू से दैट, बिकॉज ये डांस का आज है, ये डांस का कल ढूंढ रहे हैं और मैं डांस का बीता हुआ कल हूँ. तो आई एम द पास्ट. लेकिन देख, मुझे तो यही उम्मीद है इस शो से कि एक सब बच्चों के साथ कनेक्शन हो, और अभी से हो गया है, अभी से दिल जुड़ गए हैं बच्चों के साथ, ताकि मतलब जब लास्ट शो जब खत्म हो रहा होता है ना, बहुत दुख होता है. लेकिन वो मीठा दर्द होता है, सब बच्चों के इतना कनेक्शन होता है, सारे अपने बच्चे लगते हैं, इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, बड़ा इंस्पायरिंग होता है ऐसे शो में जज बनना. और मैं तो ऑडियंस की छवि हूँ वहाँ पे, डांस करना तो मुझे मतलब बहुत कम आता है. तो आई एम द लास्ट पर्सन टू जज हाउ दे आर डांसिंग, हाउ दे आर नॉट डांसिंग, क्या गलती है, उसके लिए शिल्पा और गीता हैं. लेकिन इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, ऐसे छोटे से हम्बल बैकग्राउंड में पापा मजदूर हैं, बच्चा डांस क्लास जाता है, डांस करता है. डांस क्यों करता है? ताकि अपनी मिजरी से भाग सके, खुशी मिले उसे. वो डांस शो में आने के लिए डांस नहीं करता है, ये तो बस हुआ ये कि हम वहाँ ऑडिशन करने के वो लोग मिल गए. तो इतनी इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलती हैं यार. मुझे तो, मैं तो ज़्यादा लेके जाऊंगा इस शो से जितना कि मैं दूंगा. आई एम बीन सेल्फिश इन दिस शो. सो स्वीट, सो स्वीट. वेल, सो ये थे हमारे जजेस के वर्ड्स, बट आप लोग कुछ पूछें और आप लोग इस शो के बारे में कुछ जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको इस शो की एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहता हूं. सो प्लीज हैव अ लुक. Was on TV. ओके, सो अब मे आई प्लीज रिक्वेस्ट हमारे जो बाकी के क्रिएटिव हेड्स एंड द बिजनेस डायरेक्टर, सर प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? And I think now it should be open for media to ask questions. See, they have to have some X factor. और कहते हैं ना, जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें डांस का फ्यूचर चाहिए, there has to be a style, an inherent style in that child. और ऐसे ऐसे भलते भलते स्टाइल देखने को मिला है हम लोगों को इस शो पे. I didn't even know, we don't even know what to call those dance forms. So it's going to be a great introduction even for the audiences. कि अरे यार ये कैसे डांस कर रहा है. एक तो बच्चा सिर्फ नाड़े के साथ डांस करता है. He comes in the chaddi and he's just dancing with a nada. That's his prop. No, I'm serious. और इतने confidently नाचता है कि we didn't have a choice but to just select him. और एक मतलब कुछ मैंने ब्रेक डांस देखा है, ये कुछ और ही, हाँ मतलब मासूम एक लड़का है, बिल्कुल लड़की है सॉरी, बट शी इज़ लाइक अनबिलीवेबल. और जैसे अनुराग दा ने कहा, दे आर सो, आई मीन मैनी ऑफ देम आर नॉट इवन प्रिविलेज्ड कि उन्हें डांस क्लासेस जाने का या डांस टीचर्स उनको सिखा रहे, ऐसा भी नहीं है. दे आर लाइक यू नो लेबरर्स चिल्ड्रन, हाउस हेल्प के बच्चे जिनके पास मतलब दे डोंट इवन हैव क्लोथ्स, देयर पेरेंट्स डोंट इवन हैव द मनी टू बाय देम क्लोथ्स. वो बोरो करके दे वोन समथिंग एंड देव कम एंड देव परफॉर्म्ड एट द ऑडिशंस. तो इमेजिन अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उनका लेवल क्या हो सकता है. So that's what we are amazed with. So we have actually got what we were looking for. अब तो ऑडियंसेस के ऊपर है कि उनको हमारा सिलेक्शन अच्छा लगे, और उस लॉट में से सीव करके जो हमने मतलब मेगा ऑडिशंस के लिए तैयार किया हुआ है, उन सिलेक्शंस को बस ऑडियंसेस को वो पसंद आ जाए. Ma'am, as a part of your growing up, who were your idols as dancers? Did you idolize anyone? I loved Mithunda. Disco dancer was legendary, and my favorite
is always Sridevi. Hi, my question is to Danish. The show really looks great in terms of what we have seen in the trailer. What is the budget? Some light that you can throw on that? Budget? Wow. I won't like to revisit it. आप सोनी में काम करना चाहती हैं? Very sweet of you. Unfortunately, I can't reveal the number, but yeah, it's decent enough for Ranjit to be happy and we to afford all this big judge panel, you know. I was going to say they spent a lot on me. He only pointed at you. I hope you know that. बस That's it. सो स्वीट मतलब बजट नहीं बताया तो सवाल नहीं पूछेंगे अनुराग हेलो आपसे अगर पूछे कि जैसे हर एक बच्चे की क्वालिटी बताए, एक सुपर हीरो क्वालिटी बताई, कोई नौटंकी क्वीन है या कोई मतलब कोई क्यूटी डांसर है, तो आप अगर आप अपने तीनों को आप कोई ना कोई क्वालिटी बताना चाहे डांस के मामले में, आप क्या हाँ नेम अ क्वालिटी ऑफ यर, आप तीनों क्या करें एक डांस की क्वालिटी की बात करें तो? एक डांस की क्वालिटी यस जस्ट लाइक अ सुपर हीरो, जैसे उसमें बताया गया ड्रामा क्वीन होगी Like a super quality. या सुपर ऑफ देम आपकी भी और मेरी भी। मेरी तो आप इनसे पूछिए ना, मैं अपनी थोड़ी मैं अच्छा ठीक है, तो फिर इन दोनों की आप बता दीजिए। I'm a super dancer, dude. I'm just joking. No, he is such a sumbri dancer. Now you all have no clue. अनुराग दादा genuinely dances he really well. is a very good dancer. Yeah. और जिस बंदे के फिल्मों में म्यूजिक हमेशा अच्छा होता है, हमेशा म्यूजिक यूएसपी होता है, यू कैन इमेजिन what rhythm he has. ऐसे हर शादी के बारात में लोग यही बोलते हैं तू अच्छा डांस करता है, मैं उतना ही डांस कर पाता। आप देखोगे शो पे नचाया है हम लोगों ने इन्हें। गीता के बारे में क्या बोलूं, शी माँ ही है, ये है ना माँ, मतलब she's सुपर माँ। a superb dancer. She's see, there's some people who are perfect dancers and there are some people who have great style. She is both. Because I've seen her and I've seen her work, and she's somebody who has great expressions, and that for me always holds a lot more than being just a technically, good dancer. क्या बात है। अगर आप आज भी आप लोग गीता माँ को डांस करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज कुछ होता है लगाएं। उसमें एक गाना है बहुत अच्छा परफॉर्म। If everybody Can I remembers. quit now? Because this boy, everywhere he goes, he keeps doing this. Stop it, Ritvik. हाँ जी। जी ये माइक चल नहीं रहा है मैम। मैं फुल ऑन टपोरी हूँ एक्चुअली। मैं चेंबूर की लड़की हूँ ना, तो अनिल कपूर एंड आई वी आर फ्रॉम चेंबूर, इमेजिन। दिन था इज मी, दैट इज मी। Hello, my question is to the judges. Children are usually very innocent and filled with so much of talent. There are few minus points even they have, and you are there to guide them. So what kind of difficulties do you face when telling them about their minus points, because they are so much of talent? Can I take this? Because I think we managed to tell them that things, because I'm quite used to it, I still managed to put it across. We don't have a difficulty with the children, we have a difficulty with her. They have a difficulty with me because she tells the children off, and after that I tell her off. I'm like, And how then can after the children have understood and they're going, she calls them back. वो बच्चा समझ चुका है, वो जा रहा है, बेटा इधर आओ मेरा बच्चा, और ना बेबी वी आर वेरी सॉरी, हाँ मेरा बच्चा इधर आओ, ले मेरा बच्चा, गोद में बैठा के फिर उसको आधा घंटा, हमारा ज़्यादा करके शूट में टाइम इसीलिए जाता है और दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिलता क्योंकि ये बच्ची रोना शुरू कर देती हैं. So yeah, we had a difficulty with her, not with the children. They are very nice. They're very understanding. I need psychiatric help after this show, really. I seriously have had a very difficult time on this show. जो मतलब audition शुरू किए बहुत मुश्किल था मेरे लिए. You तो have handled all of us ना अनुराग. You handled. तो when we work with Anurag is like the father. He's the captain of the ship. So he treats us like children. So he's used to it.
अनुराग शिल्पा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आए दिन सेलिब्रिटीज हमेशा कोई ना कोई ब्रांड एंडोर्स करते ही रहते हैं, और हाल ही में अभी एक हैं आप पहले? इधर यहाँ पर कौन है आप? अच्छा उधर है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है कि अगर किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं आप और मिसलीड करते हुए पाए जाएंगे तो शायद एक्शन भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस होके, बहुत कॉन्शियस होके अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करती हूँ, और मैं कभी ऐसा कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करती जिसमें मैं बिलीव नहीं कर सकती और जो मैं खुद यूज़ नहीं करना चाहूँगी। हेलो, दिस क्वेश्चन। नहीं यार, आई एम अ लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव, तो आई डोंट नो, कभी कभार मैंने बहुत सारे 4 साल और 5 साल के बच्चे आए हैं इस शो पे ऑडिशन देने के लिए, और मैं दंग रह जाती थी यार कि मेरा बच्चा तो इसका आधा भी नहीं कर सकता। ये बच्चे कैसे कर रहे हैं? सो नो, आई डोंट थिंक। वो भी थोड़ा सा टपोरी डांसर ही है मेरा बेटा भी, ही इज़ नॉट ट्रेन्ड, सो नो। गीता मैडम से पूछना चाहूँगा। हेलो, गीता मैडम से पूछना चाहूँगा मैं कि सुपर डांसर में आप सब लोग जो है डांस का कल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो डांस का आज है उसका क्या? डांस का आज ही ढूंढ रहे हैं, आज को लेके हम उनको कल में डेवलप करेंगे, बिकॉज व्हेन वी सी पोटेंशियल इन देम, इसके लिए हमारे पास कोरियोग्राफर्स हैं जो ट्रेन करेंगे उन्हें। इससे और एक चीज़ है जो फ़ायदा हमें हुआ था, शायद मुझे हुआ था एज अ चाइल्ड, कि मेरे पास एक गुरु थी, उनकी वजह से जितना मैं सीख पाई और जो मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट दे विल गेट। बहुत सारे बच्चे आज बहुत ही टैलेंटेड हैं लेकिन कल तक पहुँचते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प देम डू दैट, क्योंकि ईच डांसर विल हैव देयर ओन कोरियोग्राफर, सो दैट्स द डिफरेंस। मैडम, आपको ये लगता नहीं कि मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ये लगता नहीं कि अपने भारत देश में अलग अलग प्रकार के डांस हैं? शास्त्रीय डांस आप देखेंगे, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि डांस की खूबसूरती खोते जा रही है? अभी आज जो मैं सुपर डांस में जो भी जितनी भी डांस देखा हूँ उसके अंदर में शास्त्रीयता की झलक नजर नहीं आती। आप शो देखें, शो में शो देखना पड़ेगा उसके लिए। आप चौक जाएंगे, आपको कथक, भरतनाट्यम सब मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, दादा करते हुए भी दिखेंगे बिहू। Hello, this question is for the production house, Frames team. Hello, can you tell us what are the unique elements that you've introduced in the show? One fat judge, one dietitian. Actually, as we all know, the talent that we source out from this country is phenomenal. So the kids that you saw today and some of the kids who are going to be on the show are really par excellence. What we've also understood is maybe the kids need a bit of guidance from the start when they come on to the show and to the end of where they will arrive at. That's why the Guru Shishya element, which is something that we want to really, really harp on. बिकॉज हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं तो एक ट्यूशन टीचर, एक स्कूल टीचर, एक कोई तो गाइडेंस लगता है जहाँ पे ही कैन होन द टैलेंट इन अ मच डिफरेंट मैनर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द की दैट वी वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो हर एक बच्चा जो आ रहा है बहुत ही टैलेंटेड है, पर उसके टैलेंट को और शार्पन करके और थोड़ा सा निखार करके ऊपर करना वो गुरु का काम होगा. दैट इज़ वाई द गुरु एंड द शिष्य जो बच्चा होगा दोनों साथ में डांस करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी different point of this entire show. Shilpa ji, this question is for you. How will it help in strengthening the weekend strategy, so to say, with this show? I think this show and Indian Idol post that will be the gateway to weekend. We right now, if you look at it, Kapil is at 9. We are launching this show at 8, and once the show is through, we will have Indian Idol at 8. Talent show, which is a family show, which appeals to everybody in the family, will create a kind of, it's a gateway for weekend prime time, and it will consolidate us as the #1 family viewership channel on India on weekend at least. Yeah. शिल्पा जी, डाइटिशियन की बात अगर की है तो ऐसे हमने सुनने मिला था कि जो बच्चों की जो डाइट होती थी आप सेट पे इसका ख्याल रखते थे और आप मोस्टली वही हेल्दी फूड देते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये है मेरे बच्चे सेट पे. यार ये लाइव फेल करके रखिए सेट पे.
छुप के खाना पड़ता है, पीछे पर्दे के पीछे जाके, वहाँ जाकर सब देखती हैं वो। कभी मुझे इनवाइट नहीं करते लंच टाइम पे। आप लंच करने नहीं देती हैं इनवाइट कहाँ से करेंगे? बाय द वे अनुराग बर्फी आ रही है आपकी नहीं कब आ रही है? दूसरी वाली खाने वाली मंगाई मैंने डाइट वाली खजूर से बना हुआ है बिना शक्कर। नहीं वाकई वो क्या होता है, बच्चों को देने का चॉकलेट रखा होता है साइड में, हम देते हैं शो में ऐसा। देते नहीं है, खुद खा रहे। मैं तो एक या दो ही खाता हूँ यार, ये मतलब पूरा चार मजा चार इन्होंने, दो इन्होंने। मतलब बच्चों को थे कुछ सिर्फ टेक्निकली छह। मिलता नहीं, बच्चों को कुछ मिलता नहीं। हाँ I'm also saying मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं तो पीछे रहता हूँ, मुझे कोई बुला सोनी सोनी बहुत खर्चा कर रही है इनके चॉकलेट्स पे। अच्छा मैं इनसे पूछा मुझे क्यों लिया है शो में कभी, तो उन्होंने बताया सर बैलेंस करने के लिए। सो तो वो जज पैनल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं मुझे क्यों लिया इन्होंने। गणेश आचार्य के पास बैठे तो पल्ला भारी हो गया। फिर डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर तो राजकुमार संतोषी, फिर बाद में वो बाद में इम्तियाज जैसे लोग हैं, बीच में कोई है नहीं, बीच में मैं आता हूँ, तो करेक्ट बैलेंस हो गया सब। हेलो, मेरा प्रश्न प्रोडक्शन हाउस से है कि जो ये बच्चे ज़्यादातर जो एरोबिक्स और इस तरीके के जिम्नास्टिक टाइप के डांसेस कर रहे हैं, तो इसमें आप कि इनके मतलब ताकि इनको कुछ चोट ना लगे, इस तरीके का किस तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं क्या? क्योंकि बच्चे हैं वो तो कर जाते हैं कुछ भी उनको बोला जाए तो। नहीं, ये जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो गुरु हैं उनके, जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, वो टेक्निक के साथ तो सिखाते हैं बच्चों को। उसमें कोई मेडिकल क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हो या कुछ ऐसा कुछ स्टंट हो या ऐसा कुछ हो जो बच्चा ना कर पाए, तो हम उस पर बिल्कुल ध्यान और या स्ट्रेस नहीं देते। इट इज़ डन विद कंप्लीट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट एंड कंप्लीट अमाउंट ऑफ करेक्ट टेक्निक। सो दोनों को अगर आप चीज़ करोगे तो उसमें कोई बच्चे को या गुरु को भी they will never face any sort of medical issues on that one. और इस बात का मेरा पहला कंसर्न यही था कि शूटिंग टाइमिंग्स, जब इनसे बात की बच्चे, लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि बच्चों को इतना ध्यान दिया जाता है थोड़े घंटे के लिए। अदरवाइज रियलिटी शो में क्या होता है, लगातार शूटिंग होती है, बच्चे थक जाते हैं, लेकिन इस शो में, इस यूनिट में हर एक बच्चों को सेपरेटली इतना ध्यान दिया जाता है एंड कोई भी बच्चा थका हुआ नहीं दिखेगा आपको। सो आई थिंक हाँ, इट वॉज इनक्रेडिबल द वे दे हैव हैंडल्ड। I think children shouldn't be subjected to anything that they don't want to do. And I think from that perspective, अगर आपका बच्चा डांस से इतना प्यार करता है और खुद जाना चाहता है, हाँ अलग चीज़ है, मेरा नज़रिया बदल जाता है अगर बच्चे को माँ बाप पुश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे कि जाओ कंपटीशन में हिस्सा लो और जीत के आओ एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज़ द ओनली टाइम आई वुड गेट अपसेट। बट ऐसा कोई बच्चा आया नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होके उनको ढकेल रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वी नेवर रियली कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट। और जैसे मैंने कहा, ऐसे आई थिंक 70% ऑफ द केसेस ऑन आवर शो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आई थिंक इट कैन एक्चुअली बिल्ड देयर फ्यूचर, यू नो, क्योंकि टू सडनली बिकम अ सेलिब्रिटी ऑन टेलीविजन ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर देम। एक ज़रिया बन जाता है अर्निंग का भी। तो इट एक्चुअली, and today to reality show and to be able to win a show or even be on that show for a few weeks is a big thing, because उसके बाद आपके लिए बहुत सारे opportunities खुल जाते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब शो में देखते हैं, इस उम्र के जो बच्चे इस शो में आ रहे हैं, उन्हें इस उम्र में ये पता रहना कि आगे जाके क्या करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद समझा मुझे डायरेक्टर बनना है, तो ये दे आर टू यंग राइट नाउ। तो उनका अभी क्या एक्सपोजर मिले आए। हमारे वक्त पर रियलिटी शो नहीं होते, हम क्या जाते हैं इंटर स्कूल फेस्टिवल, इंटर स्टेट फेस्टिवल, 26 जनवरी दिल्ली, सब लोगों से मिलते थे। तो बच्चे लोग उसी तरह से इसको लें, दे आर कमिंग, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर टैलेंट, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। ये एक्सपीरियंस लिया है कि उनको ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। इनिबिशन जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, कहीं जाके आगे जाके लाइफ में कभी CEO बने तो प्रेजेंटेशन करने में भी ये कॉन्फिडेंस काम आएगा। तो ये इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि डांस सीख के यहीं पे आके बॉलीवुड में ही डांसर बनना है, बच्चे इसमें से बहुत कुछ लेके जाएंगे। On 1st of October, which is our first gala, I'm not disclosing that this because it's part of the content
There's something very interesting for the kids. 1st October, we'll let you know. That's the first gala of, right? Yeah. This is 13 weeks, 13, 14 weeks, 27 episodes of starting 10th of September. Yep. Starting 10th of September, Saturday and Sunday. We're at 8 p.m. Sony TV, everybody. Okay. So I think we should, yeah. What, anyone? Yeah, the judges. Which other dance show revolves around children right now on television? Where? It's not any. Is it going on right now? DID Kids? वही है producer by the way of that show also. So, Ranjit the Great. नहीं तो I would like to say that जहाँ तक TRPs की बात है, I don't know about the TRPs, लेकिन मेरा बेटा TV देखता नहीं है, allowed नहीं है, we're very very strict parents. 4 साल का है. But I would like him to, I would really honestly encourage him to watch this show. So this I think would be his first tryst with television. क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो बहुत ही प्योर है. We've even taken care of the language we use with the children. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है TV content थोड़ा सा aggressive हो जाता है बच्चों के लिए. And you have to really monitor when a child is watching television. तो I would definitely very safely say as a parent कि Super Dancer would be the introduction of Hindi television for my child. Wow. Wow. हो ही सकता है बिकॉज डायरेक्टर तो हमेशा ढूंढते रहता है ना, पता नहीं कब कहाँ क्या मिल जाए. और आई थिंक आई एम ऑलरेडी इन लव विद ऑल दिस किड्स. दे आर सच प्योर सोल या सबके सब. कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं इंशाल्लाह. हाँ पूछिए. ए ले 1-to-1 आएंगे ना तब बात करेंगे. 1-to-1 मैं हूँ. हाँ. We'll talk 1-to-1 because I don't want to use this platform because we all are talking about this super dance show. Want me to attack him? No. We'll talk. मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करूँगा. अभी 1-to-1 शुरू होगा ना, we'll talk about it. Chaliye, all right. So here we call it quits for all the questions, and इसके साथ we'll move on to the one-on-one interviews. Everybody, photo op. Yes, of course. आपको कैसे पूछ सकते हैं? Yes, माफ कर देना माँ से. Photo op, please, sir. Without the mic.